लोगों को शहीद तक किए हैं। डिप्रेशन में लोग फांसियाँ लगाए हैं, कमरा खाली करते वक्त छत से गिर के मर गए हैं। भूखे प्यासे पानी बंद कर दिया गया था 2-3 महीने तक, ना पानी कुछ न दे रहे थे, ना किसी टैंकर को आने दे रहे, लाइटें काट दिया थे। This was Saroj Bhai, whose family was one of approximately 5,000 families that were evicted from Faridabad's Khoregaon earlier this year. Between July and October, Municipal Corporation of Faridabad, or MCF, along with the Haryana state government, has thrice razed people's permanent houses in Khoregaon, forcing many to live either in temporary shanties or in rental housing. Khoregaon was an informal workers' settlement on the foothills of Aravallis on Delhi-Haryana border. It came under the scanner for being situated on forest land, which, according to the Punjab Land Preservation Act, is illegal. In July 2021, the Supreme Court noted that the direction to remove all unauthorized structures standing on the forest land applies to all unauthorized structures without any exception. This allowed the MCF to begin evictions in Khoregaon. Having lost their homes on land which they had bought, the evictees moved the Supreme Court the same month, asking for rehabilitation. By August, the court had directed the Haryana government to expedite rehabilitation of the displaced people. Following this, in September, 2 sites for rehabilitation were put forth. One of these was 15 kilometers away from Khoregaon in a place called Dabua Colony in Faridabad. Now, whoever wished to get these flats were also asked to pay a total of rupees 3,77,000, which could be paid over 20 years on EMI of rupees 1950 per month. This put the residents in a peculiar situation where they had to pay for a resettlement accommodation after their own homes were destroyed. MCF directed interested families to fill in a form on an e-portal, after which they would be allotted a home on a first-come, first-served basis. But the first time that the families went to see these flats, they were in for a shock. These were far from being habitable. But MCF believed that there was not enough evidence to prove this. हम स्थिति देखने गए थे, उसमें जब हमने उसको वीडियो के फोटो के साथ दिखाया कि देखिए आपकी स्थिति है, कहते हैं तुम किसी एक ब्लॉक का खींच के ले आए। To reinforce that this is not the case and that all allotted homes face the same fate, a group of allottees visited Dabua Colony to document what they saw this December. मैं खोरेगांव में रहता था 14 साल से, जिसमें मकान हम लोग का टूट चुका है। अभी मैं किराए पर रह रहा हूँ और नगर निगम ने ये फ्लैट अलॉटमेंट किया था, तो फ्लैट अलॉटमेंट की वजह से हम लोग आए थे 21/9 को देखने के लिए स्थिति क्या है। बोला आकर के रहो। हम लोग आकर के देखे तो यहाँ रहने लायक है ही नहीं, पूरा है जानवर है, नाले सही नहीं है, लाइट पानी नहीं है, खिड़की नहीं है, चौखट नहीं है, फैमिली वाले आदमी हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, और कहाँ रहेंगे हम लोग आकर के। क्या सुविधा दिया सरकार? अगर रहना पड़े उसका बच्चा लेकर रहेंगे तो रह पाएगा वो? हम लोग को फेंक दिया नाली नदी नाला में। ये ना लाइट है, ना पानी है, ना लाइटिंग बाथरूम है, कुछ भी दरवाजा है, ना खिड़की है, कुछ नहीं है। हम अभी खोरेगांव में रह रहे हैं, 3 बार 4 बार तोड़ दिए। हम कहाँ जाए? इतना कमाई तो है नहीं कि हम किराया दे के भर के ही रहे। बाल बच्चे लेके मैं खोरेगांव में रहती, फिर भी तोड़ने वाले आते, तोड़ जाते, फिर बना को ही रहते हैं। मैं बच्चे पढ़ाऊँगी कि खाऊँगी, फिर किराए भी भरूँगी। इतने किराया हमारे तो व्यवस्था ही देने भर के, या मैं किराया दे दूँगी, बच्चे पढ़ा लूँ, या तो किराया भर दूँ, फिर क्या करूँगी मैं? हमारे बस की बात तो नहीं है कि सरकार का हम किराया भर के दूँ। हमें सरकार फ्री में दे तो हम ले सकते हैं। A major problem is the lack of water supply for drinking and other uses. Some families who had been living there for over a decade post an allotment, and some who had encroached onto these empty flats pointed towards some of these issues. तो बहन अभी ये पानी मतलब अंदर नहीं आता आपके फ्लैट में? नहीं, पानी नहीं आता। हम फ्री वाले आदमी कहाँ से बताइए? कौन पीता गंदा पानी है? ये तो लैट्रिन के लिए ले जाते हैं, बेकार है। जी हमें 2009 में फ्लैट ये अलाउड हुए थे, 300 रुपये मंथली 3 की, तो हमने 13-14 साल तक हमने दिए, हमारा क्लियर हो गया जी। अब इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही,
और इतना बड़ा जी मसाला 7.5 किलो का छत पे से निकल के हमारे भाभी के सर पे गिर गया। और सरिया दिखाई दे रही है पूरे घर की, दीवारें भी फटी पड़ी हैं, कोई रिपेयरिंग के लिए कोई आ नहीं रहा और पूरे गेट वेट सब गल गए। इतना पैसा लगा दिया, पेंट करवा के थक गए, पर सीलिंग रुक नहीं रही है। जब भी बारिश आती है हम बर्तन लगा के अपने घर में जब सो रहे हैं, क्योंकि घर छत से पानी टिपक रहा है पक्के मकान में। This December morning, keen to see what is in store for them, the residents from Khori Gaon started examining their allotted homes. यही है मेरा, इसी में मेरा अलॉटमेंट पेपर है जो नगर निगम ने दिया है। घर टूटने के बाद जो मुझे मिला था अलॉटमेंट, उसी वजह से हम लोग आए हैं यहाँ देखने के लिए। ये मेरा पेपर है और ये मेरी रूम जो दिया है सरकार ने, ये रूम है। रूम का नंबर ये है 23 नंबर, फर्स्ट फ्लोर पे मिला है मुझे, जिसमें कि गेट नहीं है। वही मैं देखने आया हूँ क्या स्थिति है। उसने बोला था कि मैंने काम कर चुका हूँ, काम मैं करवा रहा हूँ, और अभी तक इसने कुछ नहीं किया है। ना लाइट है, ना पानी है, ना गेट है, बिल्कुल ना लेटरिन में गेट है, ना बाथरूम में है, बिल्कुल कोई सभी में गेट नहीं है। गटर बिल्कुल खुला पड़ा है, लेटरिन बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, किचन में भी कोई सुविधा नहीं है, खिड़की नहीं है जरा सा भी। एक छोटा कमरा सा है, ये छोटा सा एक तखत आएगा इसमें बस। हाल 13 दिसंबर में खड़ा हूँ मैं आज, वो भी पहले जैसा है, कुछ बदलाव नहीं हुआ यहाँ पे। उसने बोला था मैंने काम कर दिया, वहाँ आकर के देख लो। नगर निगम ने बोला था कि देख लो, वही देखने के लिए आया हूँ, कुछ नहीं हुआ यहाँ। शाम में यहाँ पे लग रहा है सर भूत बस रहा होगा साला, इतने डर लगता होगा। आदमी सब कहा था कि यहाँ पे आओ तो थोड़ा ज्यादा आदमी आकर के रहो ताकि हिम्मत बने रहे। अकेला तो डर लगेगा, 2-4 आदमी आ जाएगा तो मार मूर के चला जाएगा, यहाँ से मार के फेंक देगा बिल्डिंगों में। तो नहीं, मालिक को रहने नहीं है यहाँ खतरा वाला चीज है। यहाँ तो साझा ही मर्डर कर देगा, यहाँ है नहीं रहने लायक। ये सामने देखिए क्या इसमें क्या कहेगा, इसमें लग रहा है कि मार के फेंक दिया, कपड़े उपड़े पड़ा हुआ है उसका है। ऐसे टूटे में कैसे रहेगा इंसान, पानी पूरा ये तो टूटा है, ये तो कैसे रहेगा। उसे मुबारक कर देंगे हम, उन्हें चाहिए तुम्हें मतलब इसमें रह लो सच में। झुग्गी में, हमारी झुग्गी में खुशी हूँ, यहाँ में नहीं रही। सरकार का फ्लैट सरकार रख लिया अपना। One of the conditions upon accepting the flat was that the allottees would no longer be eligible to receive rupees 2,000 per month solatium or financial help that they were entitled to after being evicted. But so far, even before the allotment, no such financial help has been received by Khori residents. सरकार ने बोला था कि पैसा दूंगा 2,000 रुपये महीने 6 महीने तक, जब तक मैं आपको न दे दूं बिल्डिंग। तो अभी तक कुछ नहीं दिया हम लोग को, 1 रुपया भी नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया सरकार हम लोग, खाली बोल दिया नहीं। और कहाँ से दें हम पैसे, 4.25 लाख रुपया, और 2500 रुपये महीना कह रहा दो, 3,77,500 लगेगा, और 15 साल में आपको भरना भी है। और जब यही चीज़ हम, इस मकान भी टूटा हम लोग का 5-7 लाख रुपया गया, और 4 लाख हम ऊपर से सरकार को भी दें। हम तो अभी सुप्रीम कोर्ट और MCF जो नचारी उसमें नाच रहे हैं, और हमारे पास में सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई रास्ता नहीं है ना। अब इसके बीच में से क्या निकलेगा और क्या होगा हमें नहीं पता। हाँ, ईमानदारी से तो हम अपनी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। As India moves into the peak of winter, it is of utmost importance for residents of Khori Gaon who have lost their residences to have accommodation as early as possible. Unfortunately, Khori Gaon's case is not unique. In many cases across the country of evictions, rehabilitation remains a far cry.